So good afternoon, everybody. Today I will start various type of landform part 2. कहाँ तक हुआ था मेरा फर्स्ट पार्ट सिंक होल्स ना। तो एक बार फिर से जो भी मैंने पढ़ाया था योस, ठीक है, वो 3 स्टेज उसका एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है। ओके स्टार्ट। कितने होते स्टेज टू फॉर्म द व्हेन द रिवर इज फॉर्म? हाउ मच स्टेजेस आर देयर? Falcon river. When a river is formed, 3, ठीक है। फर्स्ट वन इज अपर कोर्स स्टेज ऑफ योर, ठीक है। सेकंड वन इज मिडल कोर्स स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, और थर्ड वन इज लोअर कोर्स स्टेज ऑफ ओल्ड, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या रहता है, यहाँ पर जो अपर कोर्स है स्टेज ऑफ योर ईयर इरोजन डोमिनेट, ठीक है। वेलोसिटी एंड इरोडिंग पावर आर मैक्सिमम, ओके। थर्ड वन इज वर्टिकल इरोजन और डाउनवर्ड कटिंग, ठीक है। फोर्थ वाला इज वी शेप वैली, ठीक है। नहीं ठीक है ना, नहीं ठीक, हाई हाई सही बात। वाटरफॉल, यहाँ पर क्या 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 मिलते हैं? वाटरफॉल, रैपिड एंड जॉर्ज एग्जिस्ट है, ठीक है। एंड लास्ट वाला इज वी शेप टू वैली तो हो गया, ठीक है। लोकल हार्ड रॉक बॉडी आर एक्सपोज, ठीक है। जो भी अंदर हार्ड रॉक बॉडी रहता है ऊपर से जब मट्टी हट जाएगा तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड वाला इज और सेकंड वाला इज मिडल कोर्स, और यू कैन से स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। ट्रांसपोर्टेशन डोमिनेट्स हियर, ओके। ट्रांसपोर्टेशन डोमिनेट्स हियर। वर्टिकल इरोजन स्लो डाउन, नाउ इट इज रिलेटेड विद द हॉरिजॉन्टल इरोजन, ठीक है। थर्ड वाला इज disappearing of V-shaped valley, but it does not disappear completely, ठीक है। Wider flood plains start to visible in this port, okay. What is the flood plain? What is the flood plain? It's like a problem smaller value particles at the No, flood plain is not that. Flood plain. Yeah. Okay. Finally, volume of water also increases. Okay. Then last one is third one, that is lower course, or you can say stage of old. Here deposition dominates. Okay. Water loses its power of transportation, so it's starting to deposition of the sediment, or you can say black color. Okay. Heavy debris are brought down here and they settle down there. From where the heavy debris is coming here? From where the heavy debris are coming? From upper and middle. Okay. So vertical erosion here almost stop. ठीक है. Work of river is mainly deposited building its bed. ठीक है. यहाँ पर जितना भी काम रहेगा बॉडी का रिवर का वो डिपोजिशन ही रहेगा. Here is no erosion. ठीक है. Then what we can found here? Meander, oxbow, oxbow lake, deltas, and here also we can found a flood plain. Okay. Okay. No. आगे है ना erosion landform due to the running water. River terraces. Then I'm teaching you erosion landform due to the running water. तो फिर क्या क्या है यहाँ पर? इरोजन की वजह से क्या क्या होगा? वैलीज, जॉर्ज, कैनियन, पॉट होल, ओके, प्लंग पूल, meander, and river terrace. I show you that it is first one is paired and second one is unpaired. Okay.
नाउ व्हाट इज दैट? अब मैंने इसको तो स्टार्ट नहीं किया था ना, या मैंने इसको भी खत्म कर दिया कि पोजिशनल लैंडफॉर्म ड्यू टू द रनिंग वाटर। डायग्राम कर दिया ना? डू यू नीड टू अगेन ड्रॉ ये? इसे ड्रॉ कर देते हैं। आगे और भी नहीं इतने, बट फॉर देम आई एम ड्राइंग इट अगेन। Okay. What is this? This is river. What is this? Huh? What is this? What is this? And what will be here? ठीक है? Okay. First one is alluvial. Alluvial plain. Okay. Found in the middle course of the river, at the foot of the slope mountain, loses its energy needed to transport much of the load. So it get dumped. ठीक है? अब यहाँ पर alluvial form या alluvial plain कैसे फॉर्म होता है? क्योंकि जो भी वाटर का जो एनर्जी होता है वो सब सेडिमेंट को आगे लेके जाने का वो वाटर के पास नहीं रहता उतना एनर्जी, so it start dumping that at a same place. Okay, so now it is delta are like a alluvial plain but they develop in different location. ठीक है, उनका जो डेवलपमेंट होता है डेल्टा का, they are same as the alluvial plain but they dump at a different places. Okay, floodplains and natural lakes. Floodplains mean when the flood comes in the river water go outside of that in plain areas. Because of that, whatever sediment or whatever debris they carry from the upper stage in middle stage, they deposit here, and when the river floods go, then from here water go in the river, and whatever sediments are there, they deposit in the plain area. So that area is known as the floodplain. Okay. What is the natural leaf? Natural leaf is nothing but a outside of there are the river में बांध के जैसा रहता है, वो बांध के जैसा रहता है, उसको कोई मैनमेड नहीं होता, वो रिवर खुद अपने आप से बना देता है, जो भी सेंडिमेंट उसके पास आते हैं वो उसको बाहर फेंक देता है और उसका रास्ता बन जाता है. ठीक है, इट इज नथिंग बट लीफ. ये जो बाहर जो एक बांध ये जो मैंने बनाया बाहर ये बांध, ठीक है, तो इट इज नॉट अ मैनमेड, इट इज अ नेचुरल. ठीक है, मैनमेड भी रहता है लेकिन मेरे यहाँ तक नेचुरल. ठीक है, ताकि पानी बाहर ना आ पाए. मैनमेड रहेगा तो कैनल होता है. हाँ, नाउ लेट अस स्टार्ट. ये हो गया रिवर का. अब स्टार्ट करते हैं ग्राउंड वाटर. ओके, ग्राउंड वाटर इरोजन लैंडफॉर्म. हाँ, ये भी तो समझाना है आपको. ऑक्सू से पहले समझाना पड़ेगा व्हाट इज द मिनेंडर. ठीक है, मिनेंडर मतलब जब भी रिवर जब प्लेन आता है और फ्लड्स आते हैं तब रिवर के वाटर अपने जो डायरेक्शन रहते हैं वहां से बाहर निकल के अगर वो कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे
अपने डायरेक्शन के बाहर निकल के, ठीक है, सिंपल सिंपल प्लेन एरिया पे, तो फिर वहां के जो जगह होते हैं प्लेन वाले, वहां से वो पूरा इरोड कर देता है और वो वहां पर पानी मिनेंडर जैसा घुस जाता है, ठीक है। मिनेंडर इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर लाइक दिस, है ना। और ऑक्सबो लेक तो तब फॉर्म होगा जब यहाँ से जब पानी जब फिर से जब निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ पानी बच जाता है, तो इट क्रिएट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। मिनेंडर मतलब पूरा जाके वो ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है, ऐसा लिटिल बिट लाइक अ जिगजैग, ठीक है, पूरा बाहर जाके बना देता है। और जब पानी जब सूख जाता है तो कहीं पर ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जहां पर पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता या वहां से निकल नहीं पाता, तो उसको बोलते हैं ऑक्सबोलेट। वो बाद में सूख जाएगा तो सूख जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना। ओके, erosion landform due to the ground water. Okay, first one is sinkhole. Sinkhole, ठीक है। Small to medium size rounded shallow depression form at the surface of rock like a limestone. ये जो है sinkhole वो ज्यादा करके limestone पे मिलता है, ठीक है। It is nothing but a shallow depression on the rock. तो ये कहाँ, तो ये कौन से टाइप ऑफ रॉक पे मिलता है? Limestone. It is a on rock, ठीक है। ये किससे होता है? डिपोजिशन से, इरोजन से? डिपोजिशन या इरोजन? इरोजन ना, ओके। When several sinkholes join together and form a valley of the sinkhole, they are called the uvula, ठीक है। When there are the many of the sinkholes, when they join together and they fill there, ठीक है, तो वहां पर एक वैली बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं uvula, uvula, ठीक है। uvula किसको बोलते हैं? uvula when two or more sinkholes come together, join together, then there is a valley formed, and that valley is known as the uvula, ठीक है। समझ में आया? Next one is when the surface of limestone are eaten by the solution process, it is known the lapide, ठीक है। When the surface of limestone are eaten by the solution, it can be any type of solution, or you can say chemical solution. When the limestone surface is eaten by the solution, it is known as the lapide, ठीक है। ठीक है, चालू कर दे नाउ। यूवला किसको बोलते हैं? कौन से? ग्राउंड वैली, ओके। लेकिन वो बनता कैसे? यूवला बनता कैसे?
वो कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से और ये लेपाइस, लेपाइस केमिकल बोलना जरूरी है, any type of solution, okay, when the limestone surface are eaten by the solution then it is known as the lapite, ठीक है। यहाँ पर ही मैं रिवीजन करा दूंगा, नो टेंशन। सेकंड, cave, okay, how the cave is formed? Cave normally have the opening through which the cave stream are discharged, ठीक है। केव कोई अंडरग्राउंड वाटर से वो जाता है, और जब अंडरग्राउंड का जो भी पत्थर है, ठीक है, या जो भी वहां पर जो भी सैंडिमेंट है वो वहां से तोड़ के लेके जाता है, तो वही अंदर वो केव बन जाता है, ठीक है। अंडरग्राउंड केव देखते हैं ना हम लोग, अब भी तो मिला था, कुछ साल पहले तो मिला था इंडोनेशिया में अंडरग्राउंड केव, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा केव था वो। तो वो कैसे बना था, वहां पर तो कोई इंसान तो गए नहीं, तो वो भी अंडरग्राउंड से ही बना हो, ठीक है। केव्स नॉर्मली हैव एन ओपनिंग थ्रू व्हिच अ केव स्ट्रीम आर डिस्चार्ज, ठीक है, क्योंकि जहां पर भी स्ट्रीम डिस्चार्ज होगी, वहां जहां से भी उनका रास्ता रहेगा, वो पत्थर को या मिट्टी वहां से काट करके जो रास्ता बनाएंगे, तो ये बड़ा बन जाता है कभी कभी, तो ही बोलते हैं उसको केव। इट इज फॉर्म ड्यू टू इरोजनल पावर ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। Okay, now we can say a depositional landform of ग्राउंड वाटर, ठीक है। आप लोग ना सिर्फ मतलब याद रखना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सिर्फ सीक्वेंस याद रखना, ये इरोजन में आने वाले या डिपोजिशन में आने वाले, क्योंकि प्रीलियम में क्वेश्चन आएंगे तो यही से आएंगे, अगर मेंस में आएंगे तो यू कैन रिमेंबर दैट, ड्रॉ दैट एंड यू कैन गेट अ गुड मार्क्स। आज हो सके तो लैंडफॉर्म को खत्म कर दूंगा, और अगला जो रहेगा लेक्चर उसमें क्लाइमेटोलॉजी नहीं तो ओशियनोग्राफी चालू कर, ठीक है। तो नाउ इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। फर्स्ट वन इज stalactites and stalagmites, ठीक है। stalactites and stalagmites, ठीक है। stalactites and stalagmites, stalactite, ठीक है, और ये stalagmites, ठीक है। They both are the deposition of, they are caused due to the deposition of underground water or groundwater, ठीक है। What are they? Form when a calcium carbonate dissolved in the groundwater get deposit once water evaporates, ठीक है। Commonly found in the limestone cave when stalactite and stalagmite happen to join together, they give a rise to the pillar or column of the different diameter. I will explain you. Form when a calcium carbonate dissolve, ठीक है। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट वो अंडरग्राउंड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, और जब वहां से वाटर इवोपरेट हो जाएगा, तो जो भी कैल्शियम कार्बोनेट जो वहां पर रहेगा बच जाएगा केव के अंदर, तो वो स्टेगलासाइट्स बनाता है और वो स्टेगलामाइट्स बनाता है, ठीक है। स्टेलासाइट्स और स्टेगलामाइट्स, ठीक है। एक नीचे वाला रहेगा और एक ऊपर वाला है, ठीक है। तो दिस इज द केव। आपने कभी वो स्टोरी में नहीं सुनी, टीवी में देखा भी होगा, दांत जैसा रहता है, दांत जैसा। आई विल शो यू, दिस इज द केव एंड हियर okay, first one is stalactite and second one is here is
might, and which is joined here, which is joined here, it is known as the pillar. ये सब केव्स में होते हैं, ठीक है, केव्स में, एंड दिस इज कॉमन वेयर द लाइमस्टोन आर फॉर्म, ठीक है, और जहां पर मिलते लाइमस्टोन तो वहीं पर तो ज्यादा होता है ना कैल्शियम, हाँ, तो वहां से जब भी वो डिसॉल्व होंगे वाटर में, और जब वाटर वहां से इवोपरेट हो जाएंगे तो यहाँ से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, एंड वेट अपर वन इज स्टेलासाइट और डाउन वन इज स्टेगमाइट, when they join together then it form the pillar. ओके ओके, तो ये स्टेलासाइट्स और स्टेगमाइट कहां पर फॉर्म होते हैं, कौन से टाइप ऑफ रॉक पे, कौन से टाइप ऑफ रॉक पे वो फॉर्म होते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट, दिलीप, वाईफाई चालू है। तो दोनों चालू रहेगा तो आपको तो ऑनलाइन होगा ही ना। नहीं बट हाँ तो आप यहाँ जाओ 3 मिनट आप जल्दी मानिए। ऑनलाइन स्टूडेंट दिलीप, कौन सा रॉक पे ज्यादा फॉर्म होते हैं ये, स्टेगमाइट्स और स्टेगमाइट्स, कौन से? हाँ, नो नो नो, मैंने पूछा रॉक, कौन से रॉक पे, मतलब कौन सा रॉक ज्यादा पाया जाता है तो वो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ज्यादा करके? हाँ, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन पे, हाँ, व्हेन द कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में जब डिसॉल्व हो जाता है और जब वाटर इवोपरेट हो जाता है तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बचता है तो वो ऐसे स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म करने लगता है केव के अंदर, और ये ज्यादा कहां पर मिलता है, जहां पर लाइमस्टोन ज्यादा, और जब पिलर्स किसको बोलते हैं भी मैं बताता हूँ, जब स्टेलासाइट्स और जब स्टेगमाइट जब एक दूसरे को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, कि अगर ज्वाइन कर लेंगे तो इसको बोलते हैं पिलर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो पानी जो जब इवोपरेट हो जाएगा, जब वो सूख जाएगा तो जो वहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा तो उससे ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो जैसा ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, हाँ, तो वो तो कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ हाँ, वो सब, ओके ओके, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट वन इज, यही थे, एक तो ये पिलर हो गए, एक तो ये हो गया स्टेलासाइट और हो गया एक स्टेगमाइट, ठीक है, फिर बाद में इरोजन एंड डिपोजिशन एक्शन ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर, glacier are mass of moving ice under on the web or commonly found in the snowfield, ठीक है, what is the glacier? Glacier is the moving ice, it can be found in the snowfield, okay, और इसका क्या डेफिनेशन होगा, फिर बाद में हाँ, आर्टिक और एंटार्क्टिक और भी बहुत जगह जहाँ पर ज्यादा स्नो स्नो गिरता है, तो वहाँ पर जो भी रहते हैं रिवर वो ग्लेशियर में हो जाते हैं तब्दील, फिर बाद में इरोजनल लैंडफॉल, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट वन इज इरोजनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर, ठीक है,
सर्क्यूएंट फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है और बड़ा सर्क्यूएंट फॉरेस्ट, ठीक है, सर्क्यूएंट फॉरेस्ट, दे आर डीप लॉन्ग एंड वाइड through or basin, very steep convex bowl shaped depression. When it is filled with the water, they are called the circulate or the corail lake, ठीक है, वो कुछ नहीं रहता, it is just like a depression, bowl type of depression on the land, and when it is filled with the water, it is known as the circle or corail, ठीक है। एक दूसरे को मतलब मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो एक दूसरे से मिलते रहेंगे, लेकिन सिर्फ ये नहीं हो रहेगा कि पहले वाला ग्राउंड वाटर से बन रहा था और ये अब जो बनेगा ये ग्लेशियर से बनेगा, अब जो आगे बनेगा वो विंड से बनेगा या वेव से बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए इन लोग का नाम भी चेंज कर दिया गया, ठीक है। दे आर डीप लॉन्ग एंड वाइड, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एंड depression on the surface, जब भी ग्लेशियर वहां से जाएगा तो उसको इरोड करते जाएगा और वहां पर डिप्रेशन बनेगा, और अगर वो डिप्रेशन में वाटर भर गया तब जाके बनेगा सर्क्यू और कोरिल लेक, ठीक है, ठीक है ना। डिपोजिशन कैसे, यहाँ पर पानी भरेगा ना, यहाँ पर मिट्टी नहीं भर रहा है, ऑफ कोर्स, तो ग्लेशियर में आपको और क्या मिलेगा, नहीं ग्लेशियर आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेक, ग्लेशियर इसको बनाए, ठीक है, ग्लेशियर से ये बनता है, ठीक है, ग्लेशियर से इरोड होगा उससे बनेगा, और जब वहां पर डिप्रेशन क्रिएट होगा तो अगर उसमें पानी भरेगा तब जाके ये बनेगा, नहीं तो वैसे तो हर एक डिप्रेशन ही रहता है ना बाउंड्री। मैंने क्या बोला, सबका कैरेक्टरिस्टिक सेम है, लेकिन सिर्फ नाम कहां पर चेंज होगा, इसको किसने बनाया, ठीक है, इस पे ही नाम चेंज होगा। फिर बाद में सेकेंड वन इज हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली और वी शेप वैली, ठीक है। ग्लेशियर doesn't create any new valley like the river does, but it deepen and wider the particular pre-existing valley, ठीक है। ग्लेशियर कुछ भी अपने से नहीं बनाता, ठीक है, ये कुछ भी अपने से नहीं बनाएगा, जो भी ये सिर्फ उसको वाइडर करेगा। अगर यहाँ पर पहले से वैली है, यहाँ पर पहले से डिप्रेशन है, हाँ, तो वो उसको वो वाइडर कर देगा, ठीक है, उसको और वो बड़ा कर देगा, लेकिन वो अपने से मतलब खुद से वो कुछ नहीं बनाए, ठीक है, वही बोल के रखा है। ग्लेशियर doesn't create any new valley like a river does, but it deepen and wider the pre-existing valley, ठीक है, V-shaped valley और the hanging valley। तो अगर वो सिंपल वैली रहेगा तो जब भी वहां से ग्लेशियर गुजरेगा तो उसको और इरोड करेगा और उसको बात करेगा और सिंपल वैली को बना देगा हैंगिंग वैली और V-shaped valley, ठीक है। व्हाट इज द V-shaped valley? What is the V-shaped valley? What is V-shaped valley? मतलब पहले सिंपल वैली रहता है और जब वो ज्यादा ही वो इरोड हो जाता है, जब उसका वाइड और वाइड हो जाता है तो वो बन जाता है वी शेप्ड वैली, और यू कैन से हैंगिंग वैली। समझ में? नहीं समझ में? जो पहले से ही वैली है, ठीक है, अगर वहां से ग्लेशियर जाएगा और दोनों साइड को जब एक साइड को इरोड करके
जब उसको और वो वास्ट बना देगा, जब वो वाइड बना देगा, तब दैट विल चेंज टू अ हैंगिंग वैली और वी शेप वैली। हाँ, व्हेन इट विल वास्ट, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही रहता ना। ऐसा रहता ना डायग्राम हैंगिंग वैली का, सही है। वी शेप वैली है ना ये। फिर बाद में आता है हॉर्स। थर्ड वन इज हॉर्नेट एरिटिस। हॉर्नेट एरिटिस, हॉर्नेट एरिटिस, ठीक है। ये कुछ नहीं रहता, जब एक पीक को, या आपने क्या बोलूं, जब एक रहता ना, एक पोल टाइप का कोई रॉक को या कोई लैंडफॉर्म को, जब वहां से ग्लेशियर जब गुजरता है, ठीक है, और उसको दोनों साइड से वो घिस घिस के या इसको इरोइड करके, जब वो पूरा वो टोप जैसा बना देता है, पूरा हॉर्न जैसा, अब आपने देखा होगा कितना लैंडफॉर्म या कोई रॉक पे सब हॉर्न जैसा बन जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉर्न। हॉर्न आर द शार्प पॉइंट एट द टिप नियर द पीक, ठीक है। जो भी वो नया पीक रहेगा, ठीक है, जब वो नया पीक रहेगा और जब वहां से जब ग्लेशियर गुजरेगा, ठीक है, तब वो क्या करेगा, इरोड करेगा, ठीक है। अगर इसने पूरा इरोड कर दिया तब तो कुछ नहीं होगा, पूरा वो तो डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, जब उसने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, तो उसको ही बोलते हैं हॉर्न, ठीक है। और एरिटिस किसको बोलते हैं, इसमें आप ध्यान देना, जैसे कि 3D पिक्चर, ये एक वैली है, ठीक है, माउंटेन है, दिस इज माउंटेन। अगर किसी माउंटेन को आप अगर ऊपर से आप जो लोगे फोटो, तो उसका तो ऐसा ही आएगा ना। समझ लो कि ये माउंटेन है, अगर आप ऊपर से लोगे तो उसका व्यू ये रहेगा, ठीक है। और जब ग्लेशियर जब इसको और शार्प कर देगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पर इसको और शार्प कर देगा, तो ये बन जाएगा एरिटिस। व्हाट इज दिस, दिस इज द अपर व्यू ऑफ माउंटेन, ठीक है, और पीक, ठीक है। और जब एरिटिस जब इसको और शार्प कर देगा, ये जो पार्ट को ये और शार्प कर देगा, तो बन जाएगा एरिटिस, ठीक है। हॉर्न ऐसा लगेगा जब एक पीक को वो इरोड करके जब वो पीक जैसा बना देगा, या सॉरी हॉर्न जैसा बना देगा, तो उसको बोलते हैं हॉर्न। एंड इट इज द अपर व्यू ऑफ माउंटेन। जब उसको इरोड करके जब यहाँ पर वो इसको और शार्प कर देगा, तब वो बन जाएगा, ओके, तब वो बन जाएगा एरिटिस, ठीक है। Now let us talk about the deposition landform due to the glacier. Deposition landform due to the glacier. Moraines, ठीक है, moraines. Moraines are the long reach of the depositional and galaxy till they were deposited at the end of the glacier. They are called as the terminal moraines, and when they are deposited on the both side, they are called the lateral moraines. मतलब एक यहाँ पर एक लैंड है, ठीक है, जब ग्लेशियर यहाँ पर कुछ डिपॉजिट करता है, ठीक है, जब यहाँ पर वो पूरा ये डिपॉजिट कर देगा, ठीक है, तो इट इज नथिंग बट अ मोरेन। वो जो डिपॉजिट करेगा, ठीक है, उसको ही बोलेंगे
मोरेन। और जब ये दोनों साइड में, अगर यहाँ पर भी कहीं पर डिपॉजिट कर रहा है और यहाँ पर भी कहीं पर डिपॉजिट कर रहा है, तो उसको बोलेगा लेटरल मोरेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ? जब दोनों साइड में जब ये रोड जब ये डिपोजिशन करेगा, ठीक है, व्हाट इज द लैंड, ठीक है, जो भी ग्लेशियर अपने साथ लेके आएगा, ठीक है, और वो वहां पर वो डिपॉजिट करेगा, ठीक है, और वहां पर समझ लो कि कुछ ऐसा डिपॉजिट हो गया, तो उसको ही बोलते हैं मोरेन। ठीक है, और अगर लैंड पे, और अगर दोनों साइड में ये डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, बोथ ऑफ साइड, ऊपर भी कर रहा है, यहाँ पर नीचे भी कर रहा है, ठीक है, ज्यादा करके, तो वो हो जाएगा लेटरल मोरेन। बॉर्डर पे ये ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, अगर इसने ज्यादा ज्यादा डिपोजिशन यहाँ भी किया है और यहाँ भी किया है, तो बन जाएगा लेटरल मोरेन। हाँ, अगर ये सिंपली कहीं पर मोरेन किया तो उसको बोलेंगे, अगर यहाँ पर सिंपली कहीं पर उसने डिपोजिशन किया तो उसको बोलेंगे मोरेन। इसका मतलब ये वे में जो भी सिखा रहा हूँ ना, इतना डिपोजिशन और इरोजन, ठीक है, तो इसका एक पॉइंटर्स बना के रखो। नो नीड टू प्रिपेयर अ नोट, क्योंकि अगर प्रीलियम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो फैक्चुअल बेसिस पे आएंगे, ठीक है, ये किसका इरोजन या डिपोजिशन फॉर्म है, ग्लेशियर का या अंडर वाटर का, ऐसे ही पूछे जाएंगे। लेकिन अभी तक तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं, आया भी था तो एक ही आया था, तो वही जो मैंने बोला, अपर यूथ वैली, मैच्योर वैली, तो उसके ऊपर आया, अभी तक तो इसके ऊपर आया नहीं। सेकेंड वन इज गैस, ठीक है, when glacier melt in summer, the water which formed as the result of the melting accumulation beneath the glacier and flow like a stream, वही सब है, ठीक है, ग्लेशियर जब आइस जब उसका मेल्ट हो जाएगा और जब बेनेथ से उसका जब वाटर फ्लो होगा लाइक अ स्ट्रीम, देन इट इज नोन एज द, और क्या, ड्यूमरिल, ड्रमनिल, DRUMLINS, ड्रमनिल, ठीक है, ड्रमनिल्स आर द नथिंग बट अ शेप लाइक स्पून, it is the tail end, it is the toss end, this upper one is it is nothing but the deposit that is done like a spoon, ठीक है, वो जो भी डिपॉजिट कर रहा है वो अगर स्पून के जैसा हो गया, ये कुछ स्पून के जैसा हो गया, देन इट इज नोन एज द ड्रमलाइन, ठीक है, एक बार पढ़ देता हूँ। Inverted spoon with the high part is called the toss end, and the lower part, or you can say a narrow part, is called as the tail end, formed as the result of the glacier movement over some minor obstruction, ठीक है, जो भी वहां से फ्लो होगा तो वहां पर वो डिपोजिशन करते जाएगा, और अगर वो डिपोजिशन कुछ ऐसे फॉर्म हुआ, कुछ इसने अगर ऐसा कुछ बॉडी फॉर्म कर दिया तो उसको बोलते हैं ड्रमलाइन। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, और नीचे वाले को टेल एंड। आंसर नहीं है। Okay, erosion and deposition, action of wind and waves. Wind are mainly geomorphic agent in the hot desert, ठीक है, हॉट डेजर्ट में ज्यादा विंडी रहता है, ऐसा जियोमॉर्फिक एजेंट, क्योंकि वहां पर तो हॉट डेजर्ट में ना ही पानी रहता है, ठीक है, ना ग्लेशियर रहेगा, तो जो भी रहेगा वो सॉइल को ट्रांसपोर्टेशन और इरोजन करने का किसका काम रहेगा, इरोज करने का किसका काम रहेगा,
हॉट डेजर्ट में रिवर कहाँ से मिलेगा आपको? आई एम सेइंग इन द हॉट डेजर्ट देयर विल बी द नो रिवर, नो ग्लेशियर। तो इरोजन कौन करेगा? हाँ, हॉट विंड, डेजर्ट में इरोजन कौन करेगा? विंड सर। विंड, विंड करेगा ना? कौन करेगा? या ग्लेशियर? पक्का विंड करेगा। ठीक है। Winds in hot desert have a greatest speed which cause the erosion and deposition activity in the desert. ठीक है। Wind in the desert have the hot desert it have a greatest speed. ठीक है। तो इसका कुछ देख लेते हैं, इसका erosion और depositional landform. First one is erosional landform of winds are, first one is paddy plains. When a high relief structure in the desert are reduced to the low featureless plains there by the activity of wind. ठीक है। जब एक हाई स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, कुछ भी स्ट्रक्चर जब वो हाई रहेगा और जब वो इरोड होते होते वो लोअर प्लेन्स में बन जाएगा या उसका वो लो हो जाएगा, तो उसको ही बोलेंगे पेडी प्लेन। ठीक है। इट फर्स्ट इट वाज द हाई स्ट्रक्चर, देन इट गॉट इरोड बाय उससे इरोड किसने किया? विंड्स ने ना, विंड्स ने किया ना। ठीक। when there is the high relief feature और हाई रिलीफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जब वहां पर एक हाई स्ट्रक्चर है और जब उसमें विंड बार बार इरोड कर रहा है, ठीक है, वहां पर इरोजन हो रहा है, तो फिर बाद में वो जो हाई स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा लो प्लेन। ठीक है, उसको ही बोलेंगे पेडी प्लेन। ठीक है, समझा? सेकेंड वन इज डिफ्लेक्शन follows. Deflection is the removal of loose particle from ground by the action of wind. ठीक है, और कुछ नहीं, जो भी लूज पार्टिकल जो भी ग्राउंड पे रहेंगे, ठीक है, और वो उसको इरोड मतलब वो इरोड करके उसको वहां से वो हटा देगा लूज पार्टिकल को, तो जो भी डिप्रेशन वहां पर बनेंगे उसको बोलेंगे डिफ्लेक्शन follows. ठीक है। थर्ड वाला इज मशरूम टेबल। आपने देखा होगा हॉट डेजर्ट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ मतलब उसको इरोड करके पहले वो ऐसा लैंडफॉर्म होगा, बाद में उसको इरोड कर करके नीचे का जो नीचे वहां पर ज्यादा इरोजन हुआ होगा, तब जाके यहाँ का जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है वो पतला हुआ रहेगा और इसको ऊपर का पार्ट वैसे ही रहा होगा, तो उसको डेजर्ट आपको ये डेजर्ट में मिलेगा। वेट कुछ ऐसा पार्ट बना रहे डेजर्ट में। नहीं, ये हाई ये पूरा ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बड़ा स्ट्रक्चर होगा, और जब वो हवा चला होगा, जब वो विंड आया होगा, तब वो विंड लोअर मतलब वो नीचे रहा होगा विंड, तो इसके लिए यहाँ पर जो है रिलीफ, उसको विंड इरोड नहीं कर पाया होगा, इरोजन यहाँ पर हुआ होगा, तो नीचे वाला मतलब जो भी रिलीफ है, हाँ ग्राउंड लेवल पे जब वो विंड चला होगा तब यहाँ से वो इरोड कर दिया होगा, और वहां का जो स्ट्रक्चर है ऊपर का वो ऐसे ही रहा होगा, और यहाँ पर इरोड करके वो उसको और पतला बना दिया होगा, तो इट इज थिंग लाइक अ मशरूम, और कुछ नहीं। मशरूम तो इसको बोलते हैं मशरूम टेबल। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। इन डेजर्ट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सैंड एंड रॉक पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड क्लोज टू द ग्राउंड by which cause the more bottom erosion in the overlying rock that the top है। ठीक है, जब वो विंड चलेगा तो जितना भी बोलते हैं रॉक रेती या जो भी मिट्टी या जो भी डैब्रिस है, तो वो तो हवा में तो जाता तो उड़ेगा नहीं, वो तो ग्राउंड लेवल पे रहेगा, और जब वो ग्राउंड लेवल पे जब वो ये रिलीफ को जब वो एक दूसरे से वो टकराएंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा इसको इरोड करेगा, तो नीचे का जो है ये स्ट्रक्चर उसको वो ज्यादा इरोड करेगा, तो नीचे का स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू द अपर स्ट्रक्चर, दिस लोअर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी द इरोड फास्ट एज कंपेयर टू द अपर स्ट्रक्चर, तो वो मशरूम जैसा टेबल बना देता है। ठीक है, और यू कैन से द मशरूम टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आपको?
समझ में आया? क्या नाम? हाँ सर, आया समझ। कल्पेश आपको समझ में आया? यस सर। फिर बाद में आएगा सैंड ड्यूज। एनीबॉडी हैव एनी डाउट? अगर डाउट है वैसे ही मत बैठो, पूछ लो, ठीक है? डाउट है आपको? नहीं? ठीक। आपको डाउट? फर्स्ट वन इज सैंड dunes. Dry or desert are good place for the sand dune formation. Sand dune formation are the nothing but they are the shape like this. और सूखे जैसे जैसे मतलब हवा चलता है, ठीक है? तो एक जगह पर अगर कुछ ऐसा पार्टिकल रह जाएगा, इरोड नहीं होगा कंप्लीटली, तो ये पूरा सैंड का ही रहेगा, ठीक है? तो सैंड की वजह से अगर इसने कुछ स्ट्रक्चर बना लिया तो उसको बोलेंगे सैंड ड्यून। सैंड ड्यून इट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर लाइक अ हॉर्स शू। आपने देखा हो कभी वो टीवी और ये डिस्कवरी पे, तो इसको ही बोलते हैं सैंड ड्यून, ठीक है? फिर बाद में आता है रोज ना, LOES रोज। Surface is covered by the deposit of the wind transportation split that has the settled out from the dust storm over the many thousand of the years. जो भी सरफेस पे जो भी डिपॉजिट रहेगा उसको विंड अपने साथ लेके जाएगा, बाद में उस पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है? जो भी उस पर स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको बोलेंगे फ्लो देयर, ठीक है? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? See, surface is covered by the deposit of the wind transported, ठीक है? They get split and has settled on from the dust storm, ठीक है? जो भी पहले वहां पर जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, उसे विंड ने इरोड कर लिया, ठीक है? और फिर बाद में जहां पर वो विंड लाके रखेगा डस्ट स्टॉर्म से, वहां पर जो भी जमा होगा, जो भी डिपॉजिट आएंगे डस्ट स्टॉर्म के वजह से, तो उसको ही बोलेंगे फ्लो देयर, ठीक है? जो भी डिपॉजिट वहां से जो इरोड करके लेके जाएंगे और कहीं पर जाके वो फिर से डिपॉजिट करेंगे तो उसको बोलेंगे, ठीक है? अब ठीक है? ठीक है? कल्पेश हाँ सर, बोलो। समझ में आपको? हाँ सर। सैंड ड्यून क्या है? हॉर्सशू लाइक स्ट्रक्चर रहता है सर। हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर ये किससे बनता है? इरोजन या डिपोजिशन? डिपोजिशन से सर। हाँ, डिपोजिशन से। डिपोजिशन ना, और लॉस? वो भी डिपोजिशन सर। मैंने क्या बोला? डिपोजिशन से जब हवा चलेगा और जब हॉट विंड जब चलेगा, हवा जब चलेगा तो आजू बाजू के सब वो हट जाएंगे, ठीक है? लेकिन जो वहां पर जो विंड लाके जब वहां पर कुछ और एक्स्ट्रा में डिपॉजिट करेगा तभी तो बनेगा ना हॉट शू। मैंने आपको बोला ना, नाइन आई विल स्टार्ट अ डिपोजिशनल लैंडफॉल ऑफ द वेव ऑफ द विंड। तो फिर ये तो नीचे तो फिर फॉर्म कैसे हो रहा है? जो भी वो इरोड करके लेके जा रहा है वो जाके कहीं पर तो डिपॉजिट करेगा ना, ठीक है? तो जो भी वो मटेरियल आएगा तो कहीं पर तो डिपॉजिट करेगा, तो इसको तो बोलते हैं लॉसेस। और ये सैंड ड्यून अगर होता
वो तो पूरा वो इरोड हो जाता। अगर वो इरोजन से बनता तो वो वहां पर वो रुकता भी नहीं, वो तो पूरा इरोड हो जाता, क्योंकि वो सैंड है, इट इज नॉट अ रॉक। डिपोजिशन मशरूम के टाइम पे इट वाज द फीचर, इट वाज द स्ट्रक्चर, इट वाज द हार्ड रॉक, ठीक है। तो वो हार्ड रॉक जो भी लंबा स्ट्रक्चर था, तो वो उसको इरोड कर रहा था नीचे से, वो एज कंपेयर टू द अपर पार्ट, लोअर पार्ट वाज इरोडिंग फास्टर, तो इसके लिए वो बन रहा था, वो इरोजन से था। और जो भी ये सैंड ड्यून और ये ब्लॉक बना, वो ये डिपोजिशन से बनेगा, ठीक है। ये तो फिर जिधर डेजर्ट एरिया रहेगा उधर ही रहेगा। ये सब जहां पर भी रहेगा, ये हॉट डेजर्ट ही रहेगा। आप तो डेजर्ट में ऐसा मशरूम टाइप का फिर बनने को ऊपर का बनने के लिए तो हार्ड से जब भी वो हवा चलेगा तो उसके साथ वहां के रेत तो जाएंगे, ठीक है। एक मतलब सिंपल भाषा में बोलो, ठीक है, वहां के रेत भी जाएंगे उनके हवा के साथ। अब ये रेत तो इतने ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि उनमें भी वेट रहता है, तो वो नीचे से ही जाएंगे, ठीक है। और जब वो नीचे से जाएंगे तो वो जो भी लंबा वाला स्ट्रक्चर रहेगा उससे वो टकराएंगे, उसको वो और इरोड करेंगे, और ऊपर वाले स्ट्रक्चर से क्या टकरा रहा है, सिर्फ हवा, ठीक है। तो एज कंपेयर टू द अपर स्ट्रक्चर, लोअर स्ट्रक्चर में ज्यादा इरोजन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सैंड भी टकरा रहा है, मतलब एक बोल दूसरे वहां पर डेब्रिस भी टकरा रहा है, वहां पर तेज हवा भी चल रहा है। तो एज कंपेयर टू द अपर पार्ट, लोअर पार्ट जल्दी इरोड होगा, और ऊपर वाला पार्ट भी इरोड होगा, लेकिन इट विल टेक अ टाइम। तो फिर वो बना लेता है मशरूम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं मशरूम टेबल। समझ में आया? सैंड ड्यून किससे बनेगा, इरोजन या डिपोजिशन? डिपोजिशन। और रॉक लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि वो वहां से लॉस है, जो भी वो डस्ट लाके, डस्ट विंड लाके वहां पर डिपोजिट करेगा, उसको बोलेंगे लॉसेस। मैंने आपको क्या बोला था, अब जो भी इरोजन वहां से हो रहा है, सैंड या कुछ भी डेब्रिस वहां से इरोड हो रहा है, तो कहीं तो जाके वो डिपोजिट करेगा, कहीं तो जाके वो डिपॉजिट करेगा ना। तो जहां पर वो डिपॉजिट करेगा तो वो उसको ही बोलेंगे लॉस, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत सिली है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। कल्पेश, आवाज नहीं आ रही कहाँ पर? सैंडविच जब भी विंड आएंगे, ठीक है, तो वो रेड भी लाएंगे। अगर विंड खत्म तो वहां पर वो अपने जितने भी वो मटेरियल थे, जो भी वो बोझ, वो अपने साथ लाए, वहां पर छोड़ेंगे। और जब छोड़ने के टाइम पे जब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और शू लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको बोलेंगे बस, और कुछ नहीं है, इसको ही बोलते हैं सैंडिंग, ठीक है। बस हाँ, और कुछ नहीं। और कौन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और कौन फॉर्म कर रहा है, और कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सैंड ड्यून डिपोजिशन से बनता है या इरोजन से? डिपोजिशन से। मशरूम टेबल किससे बनता है? इरोजन से, ठीक है। और ये action of wave, most dynamic and most destructive. wave नॉन विंड गया, अब आएगा वेव, ठीक है। आज मैं पूरा में लैंड फॉर्म में खत्म ही कर सकता हूं। वाटर वेव इट इज नॉट अ सैंड वेव। जो लैंडफॉर्म बनता है वो सैंड खत्म हो गया, वो सैंड से नहीं बन रहा था, वो विंड से बन रहा था। अब आएंगे वेव, ठीक है। लेकिन वो समंदर में आता है, मतलब ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ सन। मून ना, मून से आता है ना, हाँ। तो आजकल राइट ना वही तो बोल रहा हूँ, मुझे पता है।
मोस्ट डायनामिक है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ठीक है, दैट इज नोन एज द वेव। वेव का क्या नेचर रहता है? मोस्ट डायनामिक एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। सुनामी इज नॉट अ वेव, सुनामी इज द पावर ना, ये चीज जो मतलब जो समंदर के अंदर से आता है। आई थॉट यू नो, जब अर्थक्वेक आएगा, इट इज आल्सो लाइक अ वेव, लेकिन जो उनका जो वेवलेंथ है वो सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। हाँ, वो भी डिस्ट्रक्शन ही करता है, लेकिन जो कॉमन वेव है उससे उसका जो वेव लेंथ रहेगा, वेव लेंथ उसका सुनामी का बड़ा रहेगा ऐसे एज कंपेयर टू द नॉर्मल वेव, ठीक है। सुनामी के वजह से डिस्ट्रक्शन होगा, सुनामी कैसे? जब अर्थक्वेक आएगा, जब अर्थक्वेक आता है, जब समंदर के अंदर जब हलचल होता है, तभी तो वहां का पानी बाहर आता है, बाहर आएगा तो वो पूरा वो डिस्ट्रक्शन ही करेगा। सैंड कहाँ से लाएगा? वो जितना भी पानी रहेगा वो बाहर फेंकेगा ना। पानी के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो भी बाहर लाएंगे। टॉक टू मी ना देन। सुनामी सैंड लेके आए। अभी आपने इधर हुआ ना See, tsunami is a destruction. Even tsunami, I'm not talking about the tsunami. I'm talking about the wave. Wave is a destruction. When wave is a destructional, then tsunami is more destructional and more dynamic. Yeah. बेसिकली सुनामी इज अ कैलामिटी ना, तो अपन कैलामिटी नहीं देख रहे, अपन नॉर्मल सिनेरियो देख रहे हैं। वही तो, लेकिन उन लोग को आ रहा है ये, उन लोग को ज्यादा डाउट आ रहा है वेवलेंथ और ये सुनामी के ऊपर। आप लोगों को और किसको? मुझे समझा ही नहीं, मुझे लगा कि आप फोन पे बात कर रहे मैं फोन पे ही बात कर रहा था। सुनामी और वेव में क्या अंतर रहता है? वेवलेंथ का अंतर रहता है। सुनामी कैसे आता है? ड्यू टू द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहाँ पर? ओशन में जब भी अर्थक्वेक आएगा वहां पर हलचल होगा तो वहां का पानी बाहर फेंकेगा, ठीक है। और अर्थक्वेक अगर रिवर के आसपास जाएगा तो वो रिवर का भी पानी बाहर फेंकेगा, ठीक है। और वेव कैसे आता है? वो अर्थक्वेक से हटते क्या? नहीं ना, वेवलेंथ। इरोजन वो कैसे करेगा डियर? कैसे करेगा डियर? एक बार इरोजन का डेफिनेशन बोले सर। हां ठीक है। इरोजन मतलब क्या? Whatever sediment or whatever the debris is carried away or transported, यही होता है ना, transported. Whatever sediment, whatever debris are there, they are transported or taken away, ठीक है। Either it will be from wind, glacier, wave, etc. ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो तो जब वेव, एक मिनट, जब वेव से कुछ बन रहा है तब तभी तो मैं वहां यहाँ पर पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ ना, ये ऐसे ही खड़ा पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ ना। देखते हैं अभी क्या क्या बनता है इरोजन से, क्या बनता है डिस्कशन से। आई विल टीच यू। ये खत्म होने के बाद में जितना डिस्कशन करना होगा करते हैं, ठीक है। पहले मुझे नॉट रिलेटेड टॉपिक, आई एम टीचिंग द वेव, एक्शन ऑफ वेव, एंड योर टॉपिक वाज सुनामी। समंदर की बात थी ना, okay, now concentrate here, ठीक है। तो जो भी कोस्टल लाइन होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। जो भी कोस्टल लाइन होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज
हाई रॉकी कोस्ट और सबमर्ज कोस्ट। यहाँ पर कोस्ट दिखाई नहीं दे। सेकेंड वन इज लो सेडिमेंट। क्या हुआ ये? क्या लगे? हाई रॉक कोस्ट और द सबमर्ज कोस्ट। सबमर्ज कोस्ट का मतलब क्या? जो डूब गया वो कोस्ट वहां पर दिखाई नहीं दे। ठीक है। सबमर्ज कोस्ट, सी विल बी वेरी क्लोज टू द लैंड विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, विदाउट एनी कोस्ट। ठीक है, सी विल बी वेरी क्लोज टू द लैंड विदाउट एनी कोस्ट। ठीक है, ठीक है। डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। यहाँ पर कोई भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म यहाँ पर होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर हाई रॉकी कोस्ट में या सबमर्ज कोस्ट में यहाँ पर कोई भी डिपोजिशन नहीं होगा। ठीक है, इरोजन फीचर डोमिनेट हियर। यहाँ पर ज्यादा क्या होगा? यहाँ पर इरोजन डोमिनेट हियर। इरोजन डोमिनेट here, okay, and here low sedimentary में building coastal plain and delta। जब building का बात आए तो अगर building the coastal plain and delta जब यहाँ पर building का बात आए तो deposition। ठीक है, depositional feature dominate here। इरोजन डोमिनेट हियर हाई रॉकी में because there is no any coast। ठीक है, sea is very closer to the land without any coast। ठीक है, तो here erosion dominate here and here deposition dominate here। ठीक है, low sedimentary or you can say the emerging coast or you can say the advancing coast। ठीक है, जहां पर कोस्ट नहीं रहेगा या कोस्ट बहुत लो या सबमर्ज रहेगा तो वहां पर ज्यादा होगा इरोजन, और जहां पर कोस्ट रहेगा तो वहां पर होगा डिपोजिशन इन सिंपल वे। ठीक है, अब बात करते इरोजनल लैंडफॉर्म की। रब कर दो। किसको? इरोजन होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन वो भी तो इरोड करता है। इरोजन नहीं होगा, डिपोजिशन। और जब वो पानी फेंकेगा बाहर और जब बंद हो गया इन लोग को दिखाई, इन लोग को भी बहुत होता है तकलीफ कनेक्टिंग। ब्रेक लेते थोड़ा। आपका एग्जाम कब है? नेक्स्ट वीक। होप सो यू विल परफॉर्म बेस्ट। ठीक है, सॉरी डियर, बार बार आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। नहीं सर, चलता है। अभी क्या करें, वाईफाई बार बार धोखा दे रहा है। नो टेंशन, इससे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग को ये क्लियर हो ना? हाई कोस्ट, हाई रॉकी कोस्ट और लो सेडिमेंट कोस्ट। यस सर। ओके ओके।
ओके ओके, नाउ ध्यान देते हैं अभी। अभी आगे का चालू करते हैं। ओके, हायरार्की कॉस्ट में क्या क्या डोमिनेट होता है चांदनी? हायरार्की कॉस्ट में क्या क्या डोमिनेट होगा? कम ऑन फास्ट फास्ट, पहले हम लोग का टाइम हो गया वेस्ट। कम ऑन फास्ट आंसर में। हायरार्की कॉस्ट में क्या डोमिनेट होगा? कम ऑन, इरोजन या डिपोजिशन? आई एम गिविंग ऑप्शन। दोनों। तो इरोजन या डिपोजिशन? इरोजन, ठीक है। लो सेंटीमेंट में यहाँ पर भी डिपोजिशन, यहाँ पर डिपोजिशन कैसे? डिपोजिशन ना, पक्का? ठीक है। अब बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म की। नहीं नहीं, अब अभी तो चालू है वेव। अब अभी तो चालू है वेव, अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक सिखाया, ठीक है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कोर्स, ठीक है। चालू करते हैं। सबसे पहले आएगा क्लिफ्स। Cliffs are common on the high rocky first. At a foot of the cliff, there will be the flat or the gentle sloping platform covered by the rock debris. See, cliff is nothing but a high wall. कहाँ पर ये ज्यादा मिलता है? At a high rocky cost, ठीक है। हाई रॉकी कोस्ट यहाँ पर कॉस्ट नहीं रहेगा, मैं लिख देता हूँ। क्लिफ कहाँ पर फाउंड होता है? हाई रॉकी कोस्ट। वही तो लिखा COST, आप लोग क्या लिखते हैं? GOST, ठीक है। इट इज नथिंग बट अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पानी खत्म हो और यहाँ पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ पर सीधा बॉल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। क्लिफ इज नथिंग बट अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर कुछ नहीं है। और जैसे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर खत्म होगा तो यहाँ से लैंड फॉर्म, मतलब जो भी लैंड है यहाँ पर डेब्रिस से ये पूरे कवर्ड रहेंगे, जो भी मिट्टी या मट्टी जो भी बोलो, यहाँ से ये कवर्ड रहेंगे और यहाँ पर सब रहेगा पानी, ठीक है। कोस्टल में क्या होता है, धीरे धीरे तो डेप्थ होना चालू होता है ना, लेकिन यहाँ पर सीधा इट इज द बॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज द क्लिफ, ठीक है। इट इज द क्लिफ, इट इज नथिंग बट द बॉल लाइक स्ट्रक्चर। वही तो बोला, क्लिफ आर द common at high rock cost. At the foot of the cliff there will be the flat or the generally sloped platform covered by the rock debris, ठीक है। It is nothing but the ball like structure, ऐसा ये रहेगा बॉल, उसको बोलते हैं क्लिफ, ठीक है। When the upper part of coastal rock is hard and lower part of is soft, the erosion will not be the uniform. The lower part erode easily, which result to the formation of hollow part, ठीक है। जब यहाँ पर कुछ जैसा मतलब लोअर, वैसे जैसे ये मैंने दिखाया था डेजर्ट में, ठीक है। जब भी ये हायर पार्ट ऊंचे का अंदर रिलीफ रहेगा, ठीक है। और अगर ऊपर का पार्ट ज्यादा अगर हार्ड रहेगा और अगर नीचे वाला सॉफ्ट रहेगा तो ज्यादा इरोड कौन सा होगा? ऊपर या नीचे वाला, ठीक है। तो ज्यादा इरोड यही होगा ना, नीचे वाला। तो when the upper part of the coastal rock is hard and the lower part is soft, the erosion will not be in the uniform, ठीक है। तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, सबसे ज्यादा वो इरोड करेगा सॉफ्टर पार्ट को, और वो हार्डर को भी करेगा, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा। So here erosion will be no uniform. The lower part erode easily and which result to the formation of hollow part, ठीक है। जब कोई रॉक है, जैसे कोई रॉक है, ये ऊपर से भी इरोड हो रहा है और यहाँ से भी इरोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी इरोजन होगा वो काफी, मतलब जो ऊपर इरोजन होगा वो काफी स्लो रहेगा और नीचे
वो काफी काफी फास्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा इरोड होगा तो यहाँ पर वो हॉलो पार्ट कुछ बनाते हैं। कोस्टल रॉक ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोस्टल रॉक रहेगा ना, तो वो जब भी वो पानी फेंकेगा बाहर आएगा तो ऊपर का अगर हाथ रहेगा, नीचे का सॉफ्ट रहेगा, तो यहाँ पर इरोजन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो ज्यादा वो इरोड किसको करेगा, इसको, देन इट विल बी फॉर्म द हॉलो पार्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ हॉलो पार्ट जैसा बना देगा। hollow part as hollow part by the frequent wave action gradually develop into the sea cave, और आगे चल के यही सी केव बनाएगा, ठीक है, जो सी के अंदर रहे, ठीक है। सी के अंदर एक रॉक है, सी के अंदर एक रॉक है, ठीक है। ऊपर का पार्ट हार्ड है, हार्ड पार्ट, और नीचे का पार्ट सॉफ्ट है। यहाँ पर जो इरोजन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ज्यादा इरोड करेगा नीचे की पार्ट को, ठीक है, लोअर पार्ट को वो ज्यादा इरोड करेगा और यहाँ पर बना देगा हेलो पार्ट, ठीक है, हॉलो पार्ट, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो भी हॉलो पार्ट निकलेगा तो यहाँ पर एक वो केव जैसा बना देगा, ठीक है, वो ऐसा केव जैसा बना देगा, जो जिसको बोलते हैं सी केव। समझ में आया, समझ में आया कल्पेश, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, समझ में सी केव कैसे बनता है? when erosion are नॉन यूनिफॉर्म। not uniform, when erosion are not uniform, not uniform का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग इरोजन स्ट्रक्चर। नहीं 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 नहीं, देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग, मतलब बेसिकली नीचे हाँ, ज्यादा इरोजन होता है। हाँ, नीचे ज्यादा इरोजन हो रहा है और जो ऊपर का पार्ट है वो हार्ड है, तो हार्ड उसको है। मतलब वो बहुत टाइम लगेगा उसको इरोड करने में, और नीचे करेक्ट। के पार्ट को वो ज्यादा, वो लोअर पार्ट को वो जल्दी वो इरोड कर देगा, उससे हॉलो 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 पार्ट बन जाएगा और वो आगे चल के केव में बदल जाएगा, और उसको ही बोलते हैं सी केव। ओके, ओके, चलो ठीक है। फिर बाद में आता है सी सी स्टेक्स। Three stakes are nothing but a isolated standing rock. Isolated standing rock देखा होगा कभी, मतलब यहाँ पर समंदर है तो यहाँ पर कुछ ऐसे रॉक ऐसे अंदर से स्टैंड रहेंगे, ठीक है, और इसके अगल बगल में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सर पानी, बाहर से, पानी तो ऑफकोर्स रहेगा। सर बाहर से देखेंगे तो एक स्मॉल आइलैंड जैसे दिखेगा ना। नहीं 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 नहीं, ये आइलैंड नहीं है, ये सिर्फ एक रॉक है, वो एक स्टैंडिंग नहीं नहीं, रॉक है, आइलैंड ठीक नहीं है। है, पर देखने में ऐसा लगेगा ना आइलैंड जैसे। हाँ ओके, आपको सिर्फ वो दिखने में लगेगा, लेकिन इट इज नॉट आइलैंड, इट इज द आइसोलेटेड स्टैंडिंग रॉक, ठीक है। समझ में आ रहा है कल्पेश? हाँ हाँ सर। हाँ, आजू बाजू पानी रहेगा तो वो पानी पानी तो रहेगा ही ना। These stacks are nothing but a isolated standing rock in sea. तो वो sea के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं रहता। अगर वो बाहर रहता तो वो एक पिलर होता, ठीक है। स्मॉल अंडर वाटर stacks are known as the stump, ठीक है। वो भी एक आइसोलेटेड रॉक स्टैंडिंग ही रहता है, लेकिन वो सी के अंदर रहता है, इसको बोलेंगे स्टम्प, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सी के ऊपर रहेगा ऊपर है और और एक ये नीचे सी है। के अंदर रहेगा, ठीक है। दो अगल बगल में पानी जरूर है। फिर बाद में आएगा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या आएगा? बीच, बीच, ठीक है, बीचेस, ड्यून्स, ड्यून्स, लागून, ठीक है, लागून,
वही ड्यून मतलब जो भी रहता है बीच, ड्यून मतलब जो भी वो कलेक्शन, जो भी वो हलाएगा डिपोजिशन, तो वहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा तो उसको बोलेंगे ड्यून। फिर बाद में आएगा लैगून। लैगून पता है? पता है? फिर जो सी होता है ना, उसे थोड़ा सा पतला करके आपके एनएस और कवर सी और फिर वो अंदर सही है, सी के अंदर से वो एक पॉइंट सा बना सही है, सही है। लागून, लैगून इज सब पार्ट ऑफ सी, लेकिन वो सब साइड पे कवर रहता है, लेकिन एक एकदम माइनर मतलब एकदम पतला सा एक रास्ता रहता है जहां से पानी उसमें आता है और वहां से जाता है। इट इज अ लैगून। ठीक है। सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे फेमस चिल्का एंड पुलिकट लेक। चिल्का कहाँ पर है? चिलिका, चिलिका लेक। चिलिका एक लागून है वो, चिलिका। इट इज अ फेमस वन, CHILIKA। उड़ीसा में शायद। उड़ीसा में। सी कल्पेश नोस, गूगल किया होगा, गूगल किया होगा उसने। ओके। पुलिकट एज द नेम सजेस्ट, कहाँ पर है पुलिकट? नेम सजेस्ट तो पहले आपने ऐसे ऐसे किया, क्या है? तमिलनाडु में है। ठीक है। लैगून्स का बेस्ट एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको, अगर लिखने में आए तो दो एग्जांपल आप जरूर दीजिएगा। क्या है? एक चिलिका, चिलिका लेक इन उड़ीसा एंड पुलिकट, पुलिकाने, पुलिकट, पुलिकट लेक इन तमिलनाडु। ओके। है आदि पे नेम ना केरला। आप तो आपको फेमस एग्जांपल देने ना वहां पर, जो एग्जामिनर को भी पता हो। ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा कि एक लागून वो तो मेरे घर के बाजू में भी है। वो मैंने खुद अपने हाथ से बनाया, हैंडमेड लागून है। Due to the deposition of wave, a current boat and the bar joined the enclosed a part of the sea water, वही जो लागून का है वही। ड्यू टू द करंट ऑफ द सी, वहां पर एक जो गैप रहेगा वहां से पानी आएगा, वहां से पानी जाएगा। ठीक है। इरोजन एंड डिपोजिशन आएगा लागून के वजह से, लागून के वजह से। हाँ, ये में लागून, लैगून आता है डिपोजिशनल में। इट इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इट इज नॉट इरोजनल लैंडफॉर्म। ओके। ठीक है। और एक है लैंडफॉर्म। एक लैंडफॉर्म छोड़ो, बाद में अपना डिस्कशन करना है। पहले इरोजन से कैसे बनेगा लागून? एक्सप्लेन में हाउ, कैसे बनेगा? हाँ, लेकिन उसमें वाटर तो फीका ही रहेगा ना। हाँ, ये आप बोलो कि वो पूरा पैक रहता है और अंदर से वो एक नैरो रहता है, तो वहां से पानी जाता है। तो पहले वो उसको इरोड करेगा, उसको वो अपना जगह बनाएगा, कुछ भी। नो नो, इरोड कैसे करेगा सर? तो इरोड तो वो तो होगा ही नहीं ना। वो ऐसे बोल रही है, वो मैं वो बता रहा, वो पहले से ऐसा स्ट्रक्चर उसने बना के रखा है। डिपोजिट, वो डिपोजिशन से ही बनता है। सी, ये पूरा सी है। ठीक है, ये पूरा सी है, ये साइड में आ गया। ठीक है, तो डिपोजिशन से ही उसको सब जगह से वो पैक कर देगा। बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ये सब जगह से वो पैक कर देगा। सिर्फ यहाँ पर एक नैरो ऐसा प्लेस रहेगा जहां से पानी अंदर आएगा और यहाँ से पानी बाहर जाएगा। यहाँ पर इरोजन का कोई भी काम नहीं रहता, यहाँ पर डिपोजिशन का ही काम रहता। ठीक है। अब यहाँ पर ये मत बोल देना कि पहले वो उसको इरोजन करेगा बाद में डिपोजिट करेगा, ऐसा नहीं रहता। ये इरोजन से ही होता है, तो डिपोजिशन से ही होता है। अगेन ये डिपोजिशन से ही होता है। ठीक है। फिर बाद में और एक लैंडफॉर्म है, ये तो चला गया, डिपोजिशन का ही लैंडफॉर्म है, टोम्बोलो।
Tombolo. Tombolo is the depositional landform in which the island is attached to the mainland by the narrow piece of the land. ठीक है? Explaining. Wait. यहाँ पर कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट है, यहाँ पर सी है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेना कि कहीं पर यहाँ पर आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आइलैंड है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक छोटा सा यहाँ पर ऐसा लैंडफॉर्म बन जाता है, ठीक है, लैंडफॉर्म बन जाता है जो आइलैंड को यहाँ का जो कोस्ट है उसको एक थोड़ा सा वो ज्वाइन करता है। तो दिस इज नोन एज द टोम्बोलो, ठीक है। श्रीलंका तो वो तो मैप में पता नहीं क्या है, श्रीलंका और इंडिया के बीच का पार्ट ना, तो वो एक तो वहाँ वो तो लगता है कि वो मैन मेड अभी क्या है, वो तो वो कहाँ पर क्लियर है, लेकिन वो तो मैप में वो दिखा रहा है कि वो कनेक्टिंग है, लेकिन यहाँ पर वो सीधा वो कनेक्ट कर रहा है ना, टोम्बोलो वो सीधा वहां पर कनेक्ट कर रहा है लैंड को, जो कोस्टल लैंड है उसको आइलैंड से कनेक्ट कर रहा है। और ये कैसे हुआ, जो भी ओशन पे वो जो डिपोजिशन हुआ वेब से उससे बना, ठीक है, समझा कल्पेश? हाँ सर समझा आपको? तो आप मेरे को समझाइए टोम्बोलो क्या है। बेसिकली आइलैंड और मेनलैंड को कनेक्ट करता है एक नैरो पीस ऑफ लैंड। Okay. Tombolo is the depositional landform in which a island is attached to the mainland by the narrow piece of land. Okay. ठीक है, तो यहाँ पर अब होता है खत्म। अब बाद में एक बात करते हैं, आखिरी में और एक लैंडफॉर्म है, इसको भी खत्म कर देते हैं। हाँ अभी है ना, अभी क्या है, अभी माउंटेन्स है, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज, टाइप्स ऑफ प्लेन्स, ठीक है, ये सब खत्म कर दूंगा, जर्मिनोलॉजी खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्या सर? लैंडफॉर्म्स, ठीक है, इसको भी आप मतलब वो जो भी मैंने पहले जो पढ़ा है ग्राउंड वाटर डिपोजिशन इरोजन, तो आप उसको इससे जोड़ के देखिए, ठीक है, क्योंकि वो और ये लगभग वो सिमिलर है, ठीक है। ये ज्यादा कहाँ पर होता है, ग्राउंड वाटर का कहाँ पर चल रहा था, जो भी इरोजन था वो कहाँ पर हो रहा था, कौन से रॉक पे, कौन सा रॉक, लाइमस्टोन, ठीक है। तो ये भी जो है ये लैंडफॉर्म, ये भी कहाँ पर होगा सर, ये भी लैंडफॉर्म लाइमस्टोन पे होगा, या तो वो इरोजन जो भी करेगा वो लाइमस्टोन पे करेगा, ठीक है। ज्यादा ये कहाँ पर देखने को मिलता है, जर्मन और इटालियन साइड में, और यू कैन से द बाल्कन कंट्रीज जहाँ पर जैसे कि ग्रीस हो गया, इटली हो गया, जर्मन हो गया, तो जहाँ पर बाल्कन कंट्री है वहां पर क्या लैंडफॉर्म होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर लाइमस्टोन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। एनी लाइमस्टोन शो अ टिपिकल लैंडफॉर्म प्रोड्यूस द एक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर, वही सब, ठीक है। जो भी लाइमस्टोन वहां से अगर ग्राउंड वाटर गुजरता है तो वो लाइमस्टोन कुछ ना तो कुछ वो लैंडफॉर्म वो वहां से बन के आएगा ही आएगा, ठीक है। लाइमस्टोन रॉक दैट कनेक्ट, सबसे अच्छा कैंसर लैंडफॉर्म कहां पर बनता है, जहां पर एटलीस्ट एटलीस्ट 70% कैल्शियम कार्बोनेट हो, ठीक है। जिस लाइमस्टोन में एटलीस्ट 70% ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट है वहां पर ये और अच्छे से बन के आएगा, ठीक है। कैल्साइट लैंडफॉर्म और लाइमस्टोन में बन के आएगा, जो लाइमस्टोन में
70% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट हो। ठीक है, सबसे पहले सॉलो होल्स, सॉलो होल्स, ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म में बता। ठीक है, सबसे पहले सॉलो होल, स्मॉल और मीडियम साइज राउंडेड, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस टू द लाइमस्टोन टू द सॉल्यूशन, वही मैं बता। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन से जो भी वो लाइमस्टोन इरोड होगा, उस वहां डिप्रेशन क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं सॉलो होल। फिर बाद में आएगा सिंक होल। ठीक है, commonly limestone it is like a funnel shape towards the bottom। ठीक है, funnel पता है ना, जिसमें वो पानी भी नहीं डालते हैं, वो यूज करते हैं आदमी ऐसा। ठीक है, इट इज लाइक अ funnel shape। ठीक है, वही सब, तो इसको बोलेंगे आप सिंक होल, इट इज द funnel like shape। ठीक है, फिर बाद में आता है कॉलेप्स, सिंक होल, कॉलेप्स, सिंक, और यू कैन से डोलाइन, और यू कैन से डोलाइन, डोलाइन। ठीक है, इट इज कॉलेप्स, कॉलेप्स मतलब आपने वो देखा होगा कि लैंड, हाँ, वहां पर अगर कोई कार भी खड़ा करके और वो सुबह के देखा कि उसका कार सीधा अंदर गया, वो सीधा जमीन ही कॉलेप्स हो गया। ठीक है, तो अगर सिंक होल के ऊपर कोई लैंडफॉर्म रहा और उस पर ज्यादा दबाव पड़ा तो वो कॉलेप्स हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डोलाइन। ठीक है, फिर बाद में आते हैं पोलजेल। फिर बाद में आते हैं पोलजेल। ठीक है, पोलजेल, वेरी लार्ज स्प्लैटर्ड प्लेन डिप्रेशन इन द Carshot region, often formed by the merging of the several oblasts, जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, ओब्लास्ट, और पार्टली ड्यू टू सॉल्टिंग। ठीक है, ये मतलब कुछ नहीं रहता, मतलब बहुत सारे उल्वास। ठीक है, जब वो साथ में जब कनेक्ट हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं, तो फिर बाद में जो फिर से वो डिप्रेस और हो जाते हैं, और एक वो सिंपल एक लैंडफॉर्म बना देते, एक प्लेन बना देते। ठीक है, समझ में आया? पहले से वो तो डिप्रेशन था, सिंक होल जब साथ में मिलते तो क्या बनेंगे, युवालस, और जब युवालस जब साथ में आएंगे तो वो, और जो जब वो सिंक हो जाएंगे और उस पूरा क्लियर हो जाएगा, तो वो सिंपल बनाएगा एक प्लेन। ठीक है, तो वो प्लेन को बोलेंगे पोलजे। पोलजे कहाँ, कौन से रीजन में बनता है, विच रीजन, विच रीजन, कौन से टाइप का लैंडफॉर्म है ये, कैरगत ना, कार्स ना, और कौन से रीजन में ज्यादा बनता है ये, कल्पेश, कौन से रीजन में बनता है ये, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कल्पेश, सॉरी आप यहाँ। बाल्कन कंट्री में ना, ओके सर। बाल्कन बाल्कन कंट्री में ही ज्यादा लाइमस्टोन पाए जाते हैं, और ये जो भी लैंडफॉर्म है, कार्स का जो भी लैंडफॉर्म है, ये ज्यादा बाल्कन कंट्री में ही पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कल्पेश? हाँ सर। तो ये कौन से टाइप ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं, बाल्कन, बाल्कन जो अभी बोल सकते हैं कि इटली, जर्मनी, ग्रीस, वो मतलब एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, उसको बोलते हैं बाल्कन। ठीक है, ज्यादा ये वहां पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं,
बाल्कन्स कंट्री, इट इज द ग्रुप ऑफ कंट्री, ठीक है, तो वो सब ग्रुप को मिला के बोलते हैं बाल्कन्स। इट इज ऑल्सो द टेम्पररी लेक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ माउंटेन रहेंगे, यहाँ पर भी एक माउंटेन रहेंगे और यहाँ पर ये प्लेन रहेगा, तो इट कैन बी द टेम्पररी लेक बन जाएगा। थर्मोकार्स, ठीक है, थर्मोकार्स सिंपल, जो भी लाइमस्टोन के अंदर या जो भी लैंड के अंदर, लाइमस्टोन के अंदर जब वो पानी रहेगा, विंटर में जब वो बर्फ बर्फ बन जाएगा, तो बर्फ को तो ज्यादा चाहिए ना स्पेस, ठीक है, जब वो बर्फ बनेगा पानी, तो वो और जो उसके ऊपर जो लैंडफॉर्म है उसको धक्का मारेगा, ठीक है, वो धक्का मारेगा ना, तो फिर वो लैंडफॉर्म ऊपर वो उभर जाएगा, वो सीधा उड़ जाएगा। और जब थोड़ा सा समर वेकेशन आएगा, या वहां पर तो समर वेकेशन कम ही आता है, जब समर वेकेशन आएगा तो वहां का जब पानी जब फिर से जो आइस है फिर से वो वाटर बन जाएगा, तो वो लैंड फिर से स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, उसको ही बोलते हैं थर्मोकार, ठीक है। हाँ, अंडरग्राउंड लाइमस्टोन पे, ठीक है, जब वो बनेगा तो वो ऊपर वो उसको पुश करेगा, तो वो उभर जाएगा, और जब वहां से पानी निकल जाएगा, जब वो मतलब सॉरी जब वो और कोल्ड जो भी आइस था, तब वो पानी बन के वहां से निकल जाएगा, तब वो फिर से लैंड पर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक। सी नोट्स, ठीक है, सी नोट, it is the large depression, or you can say the pool, large pit or pool flooded and dissolved during the interglacial time, ठीक है, ये पूल टाइप का रहता है, जब यहाँ पर ग्लेशियर ज्यादा आता है तो ये डिसॉल्व हो जाता है, और कुछ नहीं, इसको बोलते हैं फिनोड, ठीक है, इट इज द लार्ज पिट और पूल टाइप, ठीक है। फिर बाद में ये सब क्या था, ठीक है, और ये इरोजनल थे, ठीक है, अब मैं डिपोजिशनल बताता हूँ। वो वही है जो भी मैंने बताया था, फिर यहाँ पर भी वही है जो भी ग्राउंड वाटर में था, वो केव्स का पिलर, ठीक है, जो ऊपर से वो आ रहा था, स्टेलासाइट्स और ये, हाँ, वो सेम ही है यहाँ पर, स्टेलासाइट्स एंड मेगलामाइट्स, और तीसरा वाला रहेगा पिलर्स, ठीक है। कल्पेश, ये आपको पता है, आपने ये मैंने इसको एकदम स्टार्टिंग में बताई, या आपको पता है क्या? स्टार्टिंग के लेक्चर पे नहीं था सर। ओके, ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, देखिए, जो भी केव रहेंगे ना लाइमस्टोन, उसको समझा रहा हूँ, आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग को भी वो रिवीजन हो जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। जो भी लाइमस्टोन में जो केव रहता है, ठीक है, अगर कोई वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है, और समय के बाद में जो वहां का जो वाटर रहता है वो इवोपरेट हो जाता है, जब वो इवोपरेट हो जाता है तब जाके वो केव में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है नीचे से वो, और ऊपर से भी ऐसा वो स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? नीचे के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्टैलेग्माइट, ठीक है, जो भी ऐसा मतलब दांत के जैसा, आपने कभी देखा होगा वो केव में दिखाते हैं, देखा है आपने?
सिर्फ फोटो में ही देखा है सर। देखिए जो भी केव रहता है, ठीक है, केव में अगर पानी रहेगा और वो पानी में कैल्शियम कार्बोनेट वो डिजोल्व हो जाएगा, और बहुत समय के बाद जब वो इवोपरेट हो जाएगा, तो जो केव में जो ऐसा ये एक भार के जैसे, या बोल सकते हैं पॉइंट के जैसे एक फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं, नीचे वाले फॉर्मेशन को बोलते हैं स्टैलेग्माइट्स, और ऊपर वाले फॉर्मेशन को बोलते हैं स्टेलासाइट्स। स्टेलासाइट्स। और जब ये काफी बड़े हो जाएंगे और जब ये एक दूसरे को छू लेंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो उनको ही बोलते हैं पिलर्स। ठीक है। अब आप देखिएगा, जब जो भी व्यक्ति जो अमरनाथ यात्रा पे जाता है, वहां पर बहुत सारे केव्स होते हैं, लेकिन वो केव्स मतलब आइस के बने होते हैं, तो मतलब उसका एक स्ट्रक्चर, और यहाँ पर एक आप देख लेंगे तो वो एक सिमिलरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, वही है, जो ही मैं तो बोला था, जो भी ग्राउंड वाटर का डिपोजिशनल और लैंडफॉर्म है, वो इससे मैच करेगा। ठीक है, रब कर दो। वही तो मैं बोल, वहां पर बर्फ है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट। कहाँ पर? केव्स में, हाँ, लेकिन वो जो बर्फ बर्फ पे तो ज्यादा बना रहता है ना। आगे चल के क्या क्या डाउट आते हैं, सिर्फ पढ़ाई में डाउट नहीं है, इसे सॉफ्ट क्यों बनाया गया है। एक बार में आया था कि कार्बन क्या था? कार्बन प्रिंट जो होता है उसके ऊपर वो सीधे नंबर एसक्यू आता है। चलो एक बार माउंटेन्स को एक बार देख लेते, आपका जो भी क्वेश्चन है बाद में बात करेंगे। माउंटेन्स, व्हाट इज अ माउंटेन? हाँ, व्हाट इज अ माउंटेन? इट इज द एक्सपोज्ड bedrock। ठीक है, इट इज द एक्सपोज्ड bedrock और elevated portion of earth crust। ठीक है, nearly 27% of world landform surface are covered by the mountains। ठीक है, टाइप fold mountain, block mountain, volcano mountain, ठीक है, volcanic mountain, और तो और है ना residual mountain, residual mountain, they are the 4 types of mountain। ठीक है, कल्पेश आपको याद आ रहा है फोल्ड माउंटेन का? हाँ सर। तो मुझे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, कॉमन फोल्ड माउंटेन का आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। चलिए सर बेसिकली वो कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से फॉर्म होता है जब दो साइड्स है, एक मतलब सपोज देयर आर टू टेक्टोनिक प्लेट्स व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और फोर्स की वजह से वो फोल्डिंग होता है और अपलिफ्ट हो जाता है। एग्जांपल वुड बी हिमालय। ओके, जब वो सरफेस जब वो सॉफ्ट रहेगा, जब सरफेस सॉफ्ट रहेगा, देन इट विल बी इजी टू फोल्ड, और अगर वो थिक रहेगा, वो हार्ड रहेगा, तो वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो लैंडफॉर्म होगा, वो जो भी लेयर होगा, उसको सॉफ्ट होना जरूरी है, तब जाके वो आराम से फोल्ड होगा। ठीक है, इट इज दिस टाइप ऑफ फोर्स यहाँ पर कौन सा लगता है, फोर्स कौन सा लगता है यहाँ पर, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक? एंडोजेनिक। एंडोजेनिक। हाँ, बेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ओके, देयर आर द एक्सोजेन। ठीक है,
कुछ ऐसा ऐसा पार्ट बनता है ना फोल्ड का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना, तो ये जो ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, और ये जो Anticline. नीचे जो ऊपर ये नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन, सिंक्लाइन क्या रहता है कल्पेश? कौन नीचे सा वाला पार्ट है? सर, नीचे वाला। ओके सही है, सिंक्लाइन एंड दिस इज एंटीक्लाइन। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? हिमालय इन एशिया, अल्फाज इन यूरोप, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका। ठीक है, और ब्लॉक्स आर क्रिएटेड ड्यू टू व्हिच फोर्स? नहीं सर, टेंशन की वजह से होता है ना, टेंशन फोर्स, फॉल्टिंग। हाँ फॉल्ट के वजह से ब्लॉक माउंटेन डेवलप होता है। ठीक है, होता है ना ब्लॉक माउंटेन? नहीं पता ना, आया था भी रेगुलर। समझाता हूँ ब्लॉक माउंटेन इज द एंडो ब्लॉक माउंटेन इज एंडोजेनिक अर्थ प्रेशर। एंडोजेनिक वो जो भी रहता है वो ऊपर से आएगा उसका प्रेशर, सही ना? ऊपर से आएगा ना, वेट ऊपर से आएगा, कहाँ से आएगा? कुछ नहीं पता, यू से एंडोजेनिक मतलब प्रेशर वो ऊपर से आएगा या अंदर से आएगा? एंडोजेनिक नीचे से आएगा ना, और एक्सोजेनिक ऊपर से आएगा। सही, आपने वो फ्लो चार्ट भी नहीं देखा जो मैंने बनाया था उसमें? कौन सा आपने बनाया? गिव हिम दैट फ्लो चार्ट। सी, इट इज क्रिएटेड ड्यू टू, ये भी गया ड्यू टू, इसको ये यूज करके देखता हूँ, ये चलेगा। सी, इट इज क्रिएटेड ड्यू टू एंडोजेनिक ये एंडोजेनिक से ब्लॉक माउंटेन किससे फॉर्म होता है? एंडोजेनिक से ना। एंडोजेनिक एंड फोर्स यहाँ पर कौन सा लगता है? फोर्स टेंशनल एंड फॉल्टिंग। ठीक है, फॉल्ट। ठीक है, डाउनलिफ्ट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड बिटवीन द टू पैरेलल फॉल्ट, जो ही मैंने बताया था, एक हैंगिंग बन जाएगा, एक फुटवॉल बन जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही बन जाएगा एक ब्लॉक माउंटेन। मैं तो आपको समझा दूँ। ठीक है, जब भी वो टेंशनल फोर्स आएगा तो ऐसे, अगर मान लो कि यहाँ पर दो ऐसे है लैंडफॉर्म, ठीक है, तो एक ऊपर चला जाएगा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऊपर वाले को? फुटवॉल। और जो यहाँ पर नीचे आ जाएगा इसको क्या बोलते हैं? हैंगिंग वॉल। ठीक है, इट इज द नॉर्मल वन। ठीक है, इट इज द नॉर्मल वन। ठीक है, और अगर यही अगर रिवर्स में चला गया तो रिवर्स में, तो जो ये हैंगिंग वॉल है, हैंगिंग वॉल चला जाएगा ऊपर, और जो फुट वॉल होगा वो आएगा नीचे। ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन का एक बार आप स्ट्रक्चर भी समझ लो। इट इज लाइक दिस स्ट्रक्चर। ध्यान नहीं दोगे तो समझ में कैसा आएगा? इट इज लाइक दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉर्स, और इसको बोलते हैं ग्राबन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। फोल्ड माउंटेन का एक मुझे एग्जांपल दो, वन एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। कम ऑन, फुजी माउंटेन, फुजी इन कहां पर है? पर सर फुजी तो वोल्केनिक है ना? सॉरी, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन जर्मनी।
ठीक है, सॉरी फॉर दिस, फुजी इज द वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है, Mount Fuji is फुजी इज द वोल्केनिक माउंटेन, सॉरी फॉर दिस, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन जर्मनी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोल्ड माउंटेन, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन जर्मनी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ये लड़की अरावली भी ब्लॉक माउंटेन में है, ठीक है, कोल्ड माउंटेन का कौन सा एग्जांपल था, हिमालय, और रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, एंडीज इन साउथ अमेरिका, अल्फाज इन यूरोप, ठीक है, फिर बाद में आता है लास्ट में वोल्केनिक माउंटेन कैसे फॉर्म होता है ये पता है, एग्जाम में बोलते हैं ना, तो ऊपर आता बस बात खत्म, when the volcano erupt, ठीक है, जब लावा अंदर से बाहर आएगा मैग्मा बन के, तब वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल को लाएगा, वहां पर लैंडफॉर्म होगा बड़ा वाला, तो उसको बोलते हैं वोल्केनिक लैंडफॉर्म। कल्पेश आपको समझ में आ रहा है वोल्केनिक लैंडफॉर्म, सॉरी वोल्केनिक माउंटेन? हाँ सर। ओके, तो इसका एग्जांपल फर्स्ट वाला है माउंट फुजी इन जापान, ठीक है, माउंट फुजी इन जापान, कौन सा क्या हवाई, हाँ हवाई इन, it is the island of American side, America, it is island of America, हवाई, ठीक है, हवाई, it is the island, ठीक है, it is of American part, ठीक है, तो और फिर बाद में आता है रेसिडुअल माउंटेन इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, यहाँ पर वेदरिंग का इफेक्ट लगता है, यहाँ पर वेदरिंग का इफेक्ट लगेगा, तो वेदरिंग इज द एक्सोजेनिक प्रोसेस, ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेस, बेरिंग डाउन डिपेंड अपॉन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, मतलब जो भी एक रहेगा, एक लैंडफॉर्म है, ऊंचा एक लैंडफॉर्म है, ठीक है, अब इरोजन हो गया, समझ लो कि यहाँ पर ये हार्ड लैंडफॉर्म है, ये सब सॉफ्ट है, तो सबसे ज्यादा तोड़ने में आसानी किसको होगी, सॉफ्ट वाले को, ठीक है, तो सॉफ्ट वाले को आराम से ये वेदर हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, और यहाँ पर ये आराम से ऊपर आराम से उभरा हुआ रहता है, तो उसको ही बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन बेस्ट, नीलगिरी, विंध्या एंड सतपुरा रेंज आर द एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है, हो गया कल्पेश, समझ में आया रेसिडुअल माउंटेन? यस सर। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। आगे अब दो ही बचे, प्लेट्यूज और प्लेन्स, इसको खत्म करके, और एक आपको वो सिखाया ना, वो टॉपिक मैंने जो जानबूझ के थोड़ा सा एक टर्म पैलियोमैग्नेटिज्म, तो वो 1 मिनट में समझ जाओगे, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा, बिकॉज उसमें बहुत सारे टर्म्स है जो आपको याद है, ठीक है, अगले लेक्चर में जर्मियोलॉजी के साथ और ओशिनोग्राफी पढ़ा के खत्म कर दूंगा, बाद में क्लाइमेटोलॉजी तो बहुत बड़ा है। इंडियन, तो ये जो चल रहा है ना, ये ज्योग्राफी, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी में वही माउंटेन, अरे लेकिन यार लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाने में मतलब ये पढ़ाना तो मतलब ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, तो सिंपल है, ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने बोला, वो इंडियन ज्योग्राफी तो मैं मुझे तो पढ़ाना है ना आपको, ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब लिविंग कैसे चल रहा है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं है, वो आराम से इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादा मैप करके आएंगे, और क्या रहेगा, क्या दो ये, हाँ आपका क्या था वो यूपीएससी एग्जाम का, हाँ वो कार्बन प्रिंट वाला, उन्होंने बोला कि कार्बन प्रिंट में नंबर्स क्यों है, ऐसी कुछ रिलेट, वो आपको समझ में आता है?
नहीं आता ना, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन को देखने का, हाँ वहाँ पर एग्जाम में आराम से गूगल के डाल दे। मैं हमेशा मम्मी को